Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 15 for Human Resource Development and here we will discuss HRD in health sector. The topics to be covered are Introduction, what does development and management of human resources mean, human resource planning, selection and recruitment, induction training program, training, other HRM functions, performance appraisal and rewards and punishments. Now first we will start with introduction. Three main processes influence performance of the health workforce. हेल्थ वर्कफोर्स जो है उसकी परफॉर्मेंस तीन मेन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है. पहला है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज कि हम कॉम्पिटेंसीज कैसे डेवलप कर रहे हैं या प्रोसेस कैसे डेवलप कर रहे हैं बाय विच द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ प्रोवाइडर्स इज प्रोड्यूस्ड एंड इक्विप्ड. देन second is deployment of the workforce refers to the process of allocating the workforce among types and levels of services. जब हम workforce की deployment करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन्हें सारी वर्कफोर्स और उसकी सर्विसेज को प्रोसेस एलोकेट कर रहे हैं कि क्या क्या रोल कौन कौन प्ले करेगा. And third is management of the workforce. It is the process of creating an adequate organizational environment and of ensuring that the personnel performance adequately. So मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि किसी भी पर्सनल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है इन अ पॉजिटिव मैनर. देन व्हाट डज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ सेक्टर मीन. सो नेक्स्ट है कि हेल्थ सेक्टर में जब हम HRD की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है. नाउ इन गवर्नमेंट देर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक एंड द ट्रेडिशनल. एंड ट्रेडिशनल इंक्लूड्स आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, previously known as ISM, that is Indian System of Medicine and now renamed as Ayush. So आयुष में A का मतलब है आयुर्वेदिक, Y is for yoga, U is for यूनानी, S is for सिद्धा and H is for homeopathy. Then there are various characteristics of these structural rigidities divide health services into. First is operating islands, then fragmented sector and broken hierarchy. Operating islands include centers, states, districts, subdivision, blocks, sectors, villages, very little coordination at different levels. Highly unpredictable resources. Then high variability in performance and inconsistency practices inadequate systems to handle complexities. सो जो ऑपरेटिंग आइलैंड्स होते हैं ये होते हैं सेंटर, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं. इसमें बहुत कम कोऑर्डिनेशन होता है अलग अलग लेवल्स पे, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है परफॉर्मेंस में और सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है. देन सेकेंड डिवीजन इज फ्रेगमेंटेड सेक्टर विच इंक्लूड स्ट्रक्चरल डिवाइड, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड आयुष, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्कीम्स, projects, components with very little coordination across different components. So fragmented sector में बहुत little coordination होता है, बहुत कम coordination होता है और इसको मतलब mainly हम divide करते हैं scheme, project और components के basis पे. Then third is broken hierarchy. Little influence to steer the program and its outcome. Lack of clarity on linkages and resource flows. Strategic policy and planning role inadequate, considerable gap in capacities and inadequate decentralization to address needs of population. So broken hierarchy मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हायरार्की जो है वो ठीक से डिफाइन नहीं होती. So इसमें लिंकेजेस जो होते हैं वो ठीक से क्लियर नहीं होते. देन स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज और प्लानिंग जो है वो भी इनएडिक्वेट होती है. गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी लेवल के बीच में, जो हायरार्की है उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं. देन डिसेंट्रलाइजेशन भी इनएडिक्वेट होती है. नाउ द वीकनेसेस. Human resource management weaknesses have been recognized and they include
लो वर्कफोर्स मोराल एंड हाई एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होता है और लोग एंथुजियास्टिक नहीं होते काम करने के लिए। लो सैलरीज भी बहुत कम होती है HRM में। देन लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस। ऐसा कोई क्राइटेरिया सेटअप नहीं होता जिससे हम लोगों को रिवॉर्ड कर सके, अप्रिशिएट कर सके जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ HR। Then the mismatch between medical training, job specifications of primary care doctors, the inadequacies of the non-salary and the recurrent funds in the system. Next is task of the medical officer. Now the task of the medical officer under RCH program are staffing, conducting monthly staff meeting, developing other health related functionaries and involvement of panchayat members, motivating other staff members, providing supportive supervision, teamwork and leadership, and providing on the job training. So मेडिकल ऑफिसर के जो टास्क हैं उसके अंदर मेन जो रोल्स होते हैं वो होते हैं स्टाफिंग, कि कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, क्या क्या कैसे उन्हें रिक्रूट और सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टाफ मीटिंग्स कंडक्ट करना। देन हेल्थ रिलेटेड फंक्शनरीज और फंक्शनैलिटीज़ कैसे काम करेगी उन्हें डेवलप करना और पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट को चेक करना। देन स्टाफ मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करना है ताकि वो एंथुजियास्टिकली काम करें, ये भी मेडिकल ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद सुपरविजन प्रोवाइड करना, कि सब कुछ सुपरवाइज करना कि जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। देन लीडरशिप एंड लीड बाय एन एग्जाम्पल, अपने आप अच्छे से काम करना ताकि जो उसके अंडर स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं वो भी अपना काम अच्छे से करें। और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट इज फंक्शंस फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि मैनेजमेंट ढंग से काम कैसे करेगा या फिर सारी चीज़ें ढंग से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दिस फंक्शन डील्स विद प्रिडिक्शन ऑफ मैन पावर नीड्स फॉर द फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द कम्युनिटी। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो फंक्शन है ये डील करता है कि कैसे हम मैन पावर की नीड्स को समझ सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंसिडर करके अपने डिपार्टमेंट की नीड्स को हैंडल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। This function deals with identifying right persons for the different jobs to be handled and placing people in right places so that they can give their best. So selection recruitment function होता है कि कैसे हम right persons right job के लिए choose कर सकते हैं और कैसे उनको right places पे रख सकते हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। Third function is induction training program. This function deals with the management of mechanisms so as to familiarize them to their job functions, rules and regulations and other relevant issues pertaining to the job which generally are not taught during their pre-service trainings and education. So induction training program होता है जब हम किसी भी नए स्टाफ मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं, नए पर्सनल को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसको एक तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि वो अपने रोल्स को और जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में उनको समझ सके। सो इसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। This function deals with ensuring the continuous development of capabilities in people so that they are able to perform their task well and meet challenges from the changing environment. So training function जो होता है ये होता है कैसे हम अपने लोगों की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है उनकी कंटिन्यूस डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ डील कर सके। देन नेक्स्ट इज performance appraisal, job evaluation and analysis. This function ensures the accountability of people कि लोग कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो उनको कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से अपना काम कर सकें। सो इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, जॉब को इवेलुएट करते हैं और फिर पूरा डेटा एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट।
So this function helps maintain the motivation of capable people and correct poor performers. So rewards होते हैं जब जो केपेबल लोग हैं, जो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, और जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनकी पुअर परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए और कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं उसके लिए पनिशमेंट्स होती हैं, या फिर जो भी अच्छे से मतलब जो भी स्टेप लेना हो वो लेते हैं. Then transfers. This function ensures that the requisite health functionaries are rotated every few years so as to get a fair chance of working in different types of health institutions established by the government. So transfers होती हैं कि कैसे हेल्थ फंक्शनरीज को हम रोटेट कर सकते हैं हर साल, कि पहले कहीं और ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे पर्सनल को ट्रांसफ़र कर दें. Next is employee counseling and feedback. This function ensures that guidance is available for employees from their supervisor and helps create a supportive working climate. So employee counseling और feedback होती है जब हम employees की counseling करते हैं, उनको guidance provide करते हैं और साथ में उनको feedback देते हैं, उनको evaluate करके उनके सामने उनका result रखते हैं. Then employee-employer relationship. This function ensures that people are not exploited, their grievances are heard and good relationships are maintained. कि employee और उनका employer जो है उसके बीच में relationship बना के चलना ताकि लोगों को exploit ना कर सके, उनकी grievances या उनकी जो भी परेशानी है उनको ढंग से सुने और उसके लिए solution ढूंढे और साथ में relationships अच्छे से बना के रखें. Now, next is human resource planning. Human resource planning refers to the process of estimating the number of persons and the kind of knowledge, skills and attitudes they need to achieve predetermined health targets and ultimately health status objectives. So human resource planning होता है कोई भी एक process जिसमें हम पर्सन्स को जज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि उनकी नॉलेज कैसी है, स्किल्स कैसे हैं और कैसे उनका एटीट्यूड है, ताकि वो एक पर्टिकुलर हेल्थ टारगेट को जो हमने पहले से ही डिटरमाइन कर रखा है, सेट कर रखा है, उसको अचीव कर सके और अपने हेल्थ स्टेटस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें. सो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है. देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट. Recruitment is the process of searching for personnel to enter a particular job or position. Recruitment होती है जब हम पर्सनल्स को सर्च करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर अपने इंस्टीट्यूशन में जॉब या रोल को फिल कर सकें. Cohesive HR policies are dependent on effective recruitment and selection practices. So HR पॉलिसीज जो है वो इस पर डिपेंडेंट होती है कि हम कैसे इफेक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं और क्या हमारी सिलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज हैं. A number of difficulties on the subject have been highlighted in the literature. The decisions about recruitment are handled at a much higher or different level and are poorly linked to service requirements. So कैसे रिक्रूटमेंट हैंडल करनी है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होती है और कैसे उसकी सर्विसेज को लिंक करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए हमें, वो सब उस पर डिपेंड करता है. देन नेक्स्ट इज इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम. दिस फंक्शन डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ mechanisms to familiarize them to their new job, functions, rules and regulations and other relevant issues pertaining to the job which generally are not taught during their pre-service trainings and education. So induction training program होता है जिसमें हम एक नई जॉब से किसी भी पर्सनल को फेमिलियराइज करवाते हैं कि उसके क्या जॉब फंक्शंस हैं, क्या रोल उसे प्ले करना है, क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है पॉलिसीज के और रेलेवेंट इश्यूज या क्रिटिकल इश्यूज जो भी उस जॉब के साथ रिलेटेड हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी जॉब को और ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके. और ये सारी चीज़ें उसको प्री सर्विस ट्रेनिंग में या फिर एजुकेशनल सिस्टम में नहीं पढ़ाई जाती हैं. सो
Most of the organization in the private sector use specialized induction training programs. तो जितने भी organizations है private sector में वो एक specialized induction training program को use करते हैं ताकि अपने personnel को और भी ज़्यादा skillful और helpful बना सकें. Next is training. Training is the most important function that directly contributes to the development of human resources in any sector including health. तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, हेल्थ में भी. ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू एड्रेस अदर इश्यूज लाइक, सो अलग अलग तरीके के इश्यूज हैंडल करता है. मेन चीज़ें जो एड्रेस करता है वो तो होती हैं हु नीड्स ट्रेनिंग, what are the skills deficits for which training is needed, और who will be able to use the training provided, कि कैसे चाहिए ट्रेनिंग, कैसे उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है और क्या क्या स्किल्स चाहिए ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के लिए, और ट्रेनिंग जो है जो हम करवा रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको कौन यूज़ करेगा. And other than these, there are some training strategies that has to be addressed or that has to address other issues like pre-service training, appropriate staff appraisal system and promotion. Now, pre-service training curriculum needs to be revised and updated to reflect reproductive child health priorities and real life working situation. प्री सर्विस ट्रेनिंग करिकुलम होता है जो जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत है और अपडेट करने की ज़रूरत है ताकि वो रियल लाइफ वर्किंग सिचुएशंस के साथ डील कर सके. एन इनोवेटिव एंड हाईली इंटरैक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग नीड्स टू बी यूज्ड इन बेसिक ट्रेनिंग. नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट स्टाफ अप्रेजल सिस्टम so as to identify the areas of deficiency in the competence of individuals that enable training institutions to design effective courses for competency building and keep track of change of the improvement achieved. So pre-service training होता है जो हम सर्विस से पहले प्रोवाइड करते हैं जैसे कि रियल लाइफ वर्क सिचुएशन से डील करने के लिए. और अप्रोप्रिएट स्टाफ अप्रेजल सिस्टम होता है जो कि डेफिशिएंसी एरियाज को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे कोई भी सिस्टम लैक कर रहा है या फिर कोई भी इंडिविजुअल जहाँ पे लैक कर रहा है उसको ठीक से ट्रेन करने के लिए. देन प्रमोशन डिमांड्स अ हायर लेवल ऑफ competence and ability to perform new task for which the promotee may not be equipped. So promotion होता है जिसमें बहुत ज़्यादा competence की ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं है कि हर promotee में ये चीज़ हो. A well-devised designed promotion policy will link training to promotees' needs. Next is other HRM functions. Now दूसरे HRM functions में first है career development. Career development should preferably be linked to training so as to stimulate trainees to upgrade their skill and competence voluntarily. So career development होता है ये हम preferably link करते हैं ट्रेनिंग के साथ ताकि ट्रेनीज को स्टिमुलेट कर सके कि वो अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सके, अच्छे से अपग्रेड कर सके. देन पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट शुड बी प्री असर्टेंड सो दैट ट्रेनिंग does not go waste. पोस्ट ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स होती हैं ताकि ट्रेनिंग हमारी वेस्ट ना जाए इसलिए हम प्लेसमेंट्स करते हैं. उसके बाद है करियर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स इज इम्पेरेटिव सो दैट द ट्रेनिंग सिस्टम बी स्टाफ्ड बाय ट्रेन ट्रेनर्स इन एजुकेशन और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी. सो करियर डेवलपमेंट जो है ट्रेनर्स की वो इम्पेरेटिव होती है ताकि ट्रेनिंग सिस्टम जो है उसको स्टाफ कर सके ट्रेनर से जो भी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से. उसके बाद ट्रेनिंग एज अ टीम. ट्रेनिंग एज अ टीम हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुली ट्राइड वेल. ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टाफ फ्रॉम सेवरल PHCs in Janampet and Mehboob Nagar in Andhra Pradesh received joint training in obstetric first aid under an Institute of Health and Family Welfare project need to be encouraged. So एक टीम की तरह ट्रेनिंग करना भी एक और फंक्शन होता है HRM का ताकि टीम में कैसे काम करना है ये लोग समझ सकें. और ऐसा हुआ था आंध्र प्रदेश में किया था उन्होंने जॉइंट ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोजेक्ट के अंडर. Then next is performance appraisal. Now there are some of the objectives of the performance appraisal system. First is strengthening the organizations. Second is appraising present performance matched with agreed objectives. Then developing people to meet future organizational needs. अब ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अप्रेजल सिस्टम ज़रूरी होता है. तो अप्रेजल सिस्टम का एक ये ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस के साथ कैसे डील करना है. देन डेवलपिंग पीपल टू मीट फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड हेल्पिंग ईच पर्सन टू डेवलप पोटेंशियल. अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हर पर्सन को हेल्प करता है. देन रिस्पॉन्डिंग टू 2 क्वेश्चंस विच एवरीवन हैज़, हाउ वेल एम आई परफॉर्मिंग एंड वेयर कैन आई गो फ्रॉम हेयर. देन नेक्स्ट इज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. Rewards and punishment as a mechanism of human resource management deals with issues like salary administration, advanced increment or stopping increments, incentives for workers, awards and other forms of recognition, etc. Now here are some questions for you. First is discuss the importance of HRM in health sector citing examples, and second is write short note on training, performance appraisal and human resource planning. That's all for this session. Thank you and have a nice day.